Hello everyone, welcome back to my channel UGC NET and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well and hope you all are preparing very well for your exam. So if you are targeting 2024 for UGC NET and JRF, then this video is for you only, right? So as we know that we have started the MCQ series, we have done some MCQs, very important MCQs in previous videos as well. So if you are new to my channel, so let me tell you, myself Jayanti, I have cracked UGC NET and JRF in commerce. And I have also been working as UGC NET faculty. Currently, I'm working as an international educator. So that's about me, and please subscribe to my channel if you're new, and also like and share if you find it informative. ओके सो हम क्या कर रहे हैं अभी अभी हम कंटेंट एंड एमसीक्यूज दोनों साथ में डिस्कस कर रहे हैं. वी विल बी हैविंग वन कंटेंट वीडियो. सो जो लास्ट हमारा कंटेंट वीडियो था दैट वाज ऑफ टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन. होप आप सबने देखा है एंड आपको सब कुछ समझ में आया उसमें जो भी हमने पढ़ा. एंड नाउ आई एम like bringing to you the MCQ video. MCQ video में हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 the most important 5 MCQs we will discuss as we have decided. तो हम most like 5 most important MCQs discuss करेंगे एक वीडियो में, because I don't want to make such lengthy videos because we all need time for our self study, for the preparation, for the hard work. So हम छोटे videos बनाएंगे. We will try to make small videos but very informative and definitely very helpful for you. Okay, so please go through the whole video, and if you have done a very good preparation, then you can revise your, like you can see where do you stand, you can measure your performance by revising these MCQs. You can just try them, and if you have not prepared that well, then please go through these MCQs because I have collected these MCQs from the relevant topics only, exam oriented topics which are like repeated in every exam every year. Okay, so go through each and every MCQ, try it. I have given the answers in the next slide to make sure that you can try when you are watching the video. Okay, so let's start with the first question. So as I told you, the answer is given in the next slide. So you can start like reading the question, you can attempt it, you can play it in double speed if you just want to revise the question. Then you can read the question, answer it, and go to the next slide to check you are correct or not. Okay, so you can check where do you stand and how your performance is going up, right? So let's see the first question. And also these questions are PYQs based. PYQ is a key like to crack this exam, especially if you want to crack it in your first attempt. So you can never ignore the PYQs. So my questions will be PYQs based on the analysis of whatever has been asked in the previous years. Okay, so it's going to be very, very important for you. Let's see the first question. क्या है हमारा first question? The most effective way to increase government revenue would be to raise the corporate income tax, since opinion polls show widespread support for this approach. So this is the statement given to us, and the question is asking which of the following fallacies is committed in the above statement. Fallacy से question है. Okay, so as I told you already कि MCQ वीडियो में सिर्फ हम MCQ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके जो गलत ऑप्शन है सही ऑप्शन है, दैट मीन्स यू हैव टू like have a in-depth analysis of each and every MCQ. आप PYQs भी पढ़ रहे हैं, कोई भी MCQ पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देखना है एंड पार हो जाना है. इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द एग्जाम, देन रीड द क्वेश्चन, आंसर इट एंड फिगर आउट द करेक्ट आंसर, wrong answer. Like in-depth analysis of that question is much required. आपको उस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. उस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि अगर उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आ जाए देन यू कैन अटेम्प्ट इट सक्सेसफुली, राइट? सो ये हमारा क्वेश्चन फैलेसी से है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड एन वीडियो ऑन फैलेसी. मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ फैलेसी पे, इनफॉर्मल फैलेसी पे. फॉर्मल फैलेसी पे भी हम बनाएंगे आगे जाके. इनफॉर्मल फैलेसी वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देन गो बैक टू माय चैनल, सी द वीडियोस. आपको इनफॉर्मल फैलेसी उसमें मिल जाएगा, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नहीं दिया है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए यू कैन गो टू द वीडियो एंड चेक. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज टेल यू फाइंड द की वर्ड इन द सेंटेंस, फाइंड द की वर्ड इन द क्वेश्चन. तो इसमें कीवर्ड क्या है कि मोस्ट इफेक्टिव वे जो है इन लाइक गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने का, वो क्या है? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को बढ़ा दिया जाए. क्यों? क्योंकि ओपिनियन पोल से ऐसा लगता है. सो दिस इज योर कीवर्ड, ओपिनियन पोल्स. ओपिनियन पोल्स मीन्स majority of people are like supporting this approach. So majority of people means appeal to majority fallacy is there. appeal to majority fallacy क्या है? बहुत सारे लोग किसी चीज को मतलब हाँ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसका मतलब वो सही है. तो ऐसा हो जरूरी नहीं है, राइट? सपोज 80% पीपल आर सेइंग समथिंग इज ट्रू, बट दैट माइट नॉट बी ट्रू ऑल्सो. ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो वो सही है.
तो यहाँ पे ओपिनियन पोल्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये अप्रोच सही है, दैट मीन्स वो सही है लॉजिकली। सो दैट इज योर लॉजिकल फैलेसी। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, फैलेसीज, राइट। तो ये हमारा अपील टू मेजोरिटी फैलेसी है, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग? गुड टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। यू आर नॉट सपोज टू रीड एनीथिंग एल्स फॉर दिस। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट सिलेक्ट करना है जो कि इफेक्टिव और गुड टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड है। लेट्स सी द ऑप्शंस। रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट टू फॉस्टर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर, नई नई चीजें सीखना है, एक्सप्लोर करना, तो ये तो बिल्कुल जरूरी है। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, अच्छे से रिस्पॉन्सिव होना, अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसके प्रति आप अच्छे से उसका आंसर देंगे, रिस्पॉन्सिव रहेंगे टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बहुत सारे लोग इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव चीजें सिलेक्ट करनी है तो नॉलेज डजंट मैटर, मे बी नॉलेज मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ाने वाले हैं उसका नॉलेज ही हमें नहीं है तो इफेक्टिव टीचिंग गोज नल। उसमें इफेक्टिव टीचिंग कहाँ से हुई अगर हमें पता ही नहीं है, राइट। सो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज डेफिनेटली a required point for good teaching and effective teaching. Maintaining interpersonal relationship, maintaining a good relation with the student, like having amicable relation, उनके साथ अच्छे से बात करना, एक अच्छा friendly relation रखना ताकि वो आपको अपनी problems बता पाएं, so that is also important. Strict adherence to a rigid teaching plan, एक rigid teaching plan का होना कोई जरूरी नहीं है, we can be flexible, राइट हमें डायनामिक अप्रोच चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए। रिजिड मनी जो एक बार डिसाइड हो गया वही टीचिंग प्लान रहेगा, भले ही बच्चे को समझ में आए या ना आए, डजंट मैटर, तो ये तो गलत पॉइंट हो गया। सो यू हैव टू फिगर आउट विच पॉइंट इज पॉजिटिव। स्ट्रिक्ट एक नेगेटिव वर्ड है, रिजिड टीचिंग प्लान एक नेगेटिव वर्ड लग रहा है, तो नेगेटिव वर्ड्स आप कीवर्ड्स फाइंड करके उसको एलिमिनेट कर दो। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। होप इट्स क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which assessment will be given to learners during the course of instruction rather than after it is completed? तो ये उसी टॉपिक से क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन और असेसमेंट, बोथ आर सिमिलर। तो कौन सा असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द लर्निंग किया जाता है? अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो कोर्स वर्क यानी कि पढ़ने के दौरान, इंस्ट्रक्शन के दौरान जो असेसमेंट किया जाता है दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। In that video, I have explained what is diagnostic assessment, what is summative assessment, and what is placement assessment. So if you have not watched the video, then please go back and watch the whole video to understand what is evaluation and assessment. उसके टाइप्स को समझने के लिए आप उस वीडियो को देखिए, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा एंड यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द असेसमेंट और इवेल्युएशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 is the stages of theory of cognitive development in ascending order. Another very important topic of UGC NET paper 1. जीन पियाजे का जो थ्योरी है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है जीन पियाजे की थ्योरी से। सो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जीन पियाजे की थ्योरी में जो स्टेजेस हैं लर्निंग के, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ लिया है देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अभी एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी आंसरिंग इट करेक्ट इन योर एग्जाम, अगर आपको जीन पियाजे का थ्योरी से क्वेश्चन आता है। सो एज ऑफ नाउ लेट मी टेल यू, सेंसरी मोटर स्टेज है हमारा सबसे फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद हमारा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो सी बी, कहाँ पे आपको सी बी दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको एक भी पता है तो आंसर बन जाएगा, बट बहुत बार आंसर जम्बल्ड होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए सो दैट यू कैन आंसर। उसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सो व्हाट इज जीन पियाजेस थ्योरी? लेट्स अंडरस्टैंड। यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस सिंगल स्लाइड। जीन पियाजे की थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आए आपका बन जाना चाहिए अगर आप इस स्लाइड को समझ जाओ। तो इसमें 4 स्टेजेस दी हैं जीन पियाजे ने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। जो सेंसरी मोटर है उसका एज रेंज है 0 to 2, लाइक 0 से यानी न्यू बॉर्न से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनको इस स्टेज में रखा गया है। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस स्टेज, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स। तो इसमें जो ये वर्ड्स होते हैं वो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड या मैचिंग में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब मैच करना है। ऑब्जेक्ट परमानेंस
is the word related to sensory motor stage. Object permanence means इसमें हमें कुछ ऐसा पता नहीं चलता है, राइट. कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर, हम अपने सेंसेस के थ्रू लाइक नाक, आंख, कान के थ्रू कुछ सीखने का या फिर कुछ देखने का कोशिश करते हैं. इसमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है. वी डोंट थिंक एनीथिंग, राइट. सो इट्स जस्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस. प्री ऑपरेशनल क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग. इसमें हम सोचते हैं लेकिन जो देखते हैं वही सोचते हैं, यानी जो दिखता है वही सच हमें लगता है. वी थिंक वॉट एवर इट लुक्स लाइक, वी डोंट थिंक एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दैट, right? So use of proper syntax, grammar to express concepts. Imagination and intuition are strong, but complex abstract thoughts are still difficult. मतलब हम जो देखते हैं बस उसी बारे में सोच सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं सोच सकते. That is your pre-operational stage. Conservation is developed. Conservation इसमें आपको यानी कि जो सब कोई देख रहा है, जो सब सीख रहे हैं वो आप सीख रहे हैं, कुछ ऐसा अलग आप नहीं सोच रहे हैं. कंक्रीट ऑपरेशनल कौन सा स्टेज है? इसमें आपका कंसेप्ट attached to concrete situations. That means you start thinking yourself. Like जो देख रहे हैं उसका रीजन क्या है, कैसा है, वो हम थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर देते हैं. That is your concrete operational stage. Okay. So here the age group is 7 to 11 years old. Previous was 2 to 7 years old. Last is formal operational, which is 11 years and the older, like 11 years और उससे जितने भी बड़े हैं वो सारे स्टेज में आएंगे. फॉर्मल ऑपरेशनल, नाम से ही पता चल रहा है. फॉर्मल लर्निंग, थियोरिटिकल, हाइपोथेटिकल एंड स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल. तो इसमें हम क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग में आ जाते हैं. ओके, सो दैट इज द टॉप स्टेज. तो ये आपको सारे स्टेज याद करने हैं, उनका एज ग्रुप याद करना है और उनके बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखना है. क्लियर? Let's come to the last question. स्वयं प्रभा से क्वेश्चन है भाई, तो ये तो सबको आता होगा अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं. स्वयं प्रभा, मूक्स, ये तीनों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, राइट? तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं. स्वयं प्रभा के बारे में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम बस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय DTH चैनल्स. तो ये इनिशिएटेड किसके द्वारा किया गया है? तो ये इनिशिएटेड किया गया है, होप यू ऑल हैव आंसर्ड. ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD, विच इज लाइक करेंटली नोन एज MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो सबसे पहले MOE था, फिर MHRD हो गया. सॉरी, आई हैव रिटन MHRH. ओके, तो पहले MOE था, फिर MHRD हो गया, फिर MHRD से MOE हो गया. तो करेंटली इट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD जो है, उसी ने स्वयं प्रभा को इनिशिएट किया है. तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि यूजीसी ने इनिशिएट किया है, CEC ने इनिशिएट किया है या फिर AICTE ने किया है. तो नहीं, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट हैज बीन इनिशिएटेड बाय MOE, MHRD. दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिले, MHRD या MOE, यू विल टिक दैट आंसर. ओके, स्वयं प्रभा का डिस्कशन मैंने पहले ही किया है. हम पहले ही चैनल्स के नाम और स्वयं प्रभा के कितने चैनल्स है, वट एवर इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्वयं प्रभा, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. So you can like answer all the questions regarding that if you see the video. Okay, so go and watch the video if you have not watched so far. Answer is option number A. Okay, that's it everyone. So these were the 5 most important questions for today. I hope you enjoyed the session and you liked the video and you find it informative. Please share to your friends, whoever is preparing for UGC NET exam. Thank you so much for watching the video and keep learning, keep working hard, because this exam is very difficult to crack for sure. Especially if you are preparing and you want to crack it in first attempt, then you have to work harder, right? But we will try together, and also we'll be meeting very soon with another informative video. Next video will be of content video, so because we will be having alternatively content and MCQ, so that we can cover everything simultaneously, right? So thank you so much again. See you in the next video. Bye bye, take care.